हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज मैं आपके लिए जनरल स्टडीज में एक नया चैप्टर लेकर आया हूं मैथमेटिक्स से। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इससे पहले मैंने एक चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इज फ्रॉम द एपी। सो दिस इज द क्वेश्चंस आई डिस्कस इट अर्लियर। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 का पहला क्वेश्चन था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ second questions from the BPSC TRE 1.0. This question is from the fraction concepts. I will discuss in details. Before going to that, just I will update you. There is already war is started between Israel and Philistine. Uh, Philistine actually is from the Gaza Patti. This is the area from where the war is started, and the Lebanon from here they are started attacking on the Israel. Israel is Italian under the code name that is called the Iron Sword, and the Hamas group that is from the Gaza Patti, they are called their operation as Al Aqsa Storm. आप इसे अल अस्का स्ट्रॉम और अल अस्का फ्लड भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एटलीस्ट फ्रैक्शन समझते होंगे और फ्रैक्शंस का मीनिंग समझते होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस मीन्स, फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन and this is equal to half. What does it mean 1 by 2? 1 by 2 means 1 by 2 means half. Half means you can say, for example, this is the glass of water. If it's filled half, it means it is filled by 1 by 2. So 1 by 2 of this glass is filled with water. तो अगर हम पूरे ग्लास को दो पार्ट में डिवाइड करें, that is the 2. So one part is filled, that's why 1 by 2. If this glass is filled by, so I have divided this glass into 1, 2 and 3. If it's filled up to here, then what is the infraction? It will call as a 2 by 3. So 2 by 3 part of glass is filled. So you got my point. Like 3 is the total glass we divide into 3 parts, and out of 3, 2 part is filled. So that is called the 2 by 3. Similarly, for example, 1 by 4. What it means? This glass is, if I will divide into the 4 part, 1, 2, so 1, 2, 3 and 4. All 3 parts should be equal. So don't go into the shape of this lines. Just assume that all 4 parts are equal. So what I am saying, 1 by 4 means only one part of the out of 4 is filled. So this is 1 by 4. I think it is clear. So fraction is, for example, in your examination, if you are getting 15 marks out of 20, it means that out of 20 questions, your 15 is correct and 5 is wrong. If all the questions having equal marks and there is no negatives. So if there is a 20 questions and you answer 15 questions correctly and 5 questions wrong, then you got the 15 out of 20. You got it? So this is the fraction. If you understand the fractions, it will be easy for you to understand the percentage. It will be easy to understand your profit loss. It will be easy for all the places. So this is one of the basic concepts of fractions. I hope it is clear. So now the question is, for example, if I will ask a questions, 1 by 4 is and 3 by 4, which one is greater? So what it means by 1 by 4? It means the one of the glass, if you divide into 4 parts, 1, 2, 3, one more, so 4 parts, then only one part is filled. So we are talking about 1 by 4, this part. But if it's a 3 by 4, then we are talking about 3 parts, 1, 2, 3. All 3 parts are filled. So which one is greater? So this is the greater.
So greater sign will be like this. See, sign also remember it. If it's a bigger, it's a pointed arrow. So this is a small. This is going to be the increasing the area. So the which one is the increasing area, that is the bigger. I hope it is clear about the fractions. Now there is a fractions addition, subtraction, multiplications, and division. I don't know, I should discuss this one or not, because this is the basic things. Okay, let me quickly discuss this one. So for example, if I have to add 1 by 2 plus 3 by 4. Okay, so 1 by 2 plus 3 by 4. How we can do that? So first we have to find the LCM. LCM of these 2 and 4. So what will be the LCM of 2 and 4? There is a new term is coming, LCM. LCM is least common multiple. It means that the lowest number, वो सबसे छोटा नंबर जिसमें हम 2 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा और हमें शेषफल 0 बचेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम जो होगा दैट इज द 4। अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा और 0 बचेगा शेषफल, और 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 शेषफल बचेगा। देयर इज अनदर नंबर, लेट्स टॉक अबाउट 8। 8 में भी अगर हम 2 से भाग देंगे तो 0 बचेगा शेषफल, और 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, बट दिस इज नॉट द लोएस्ट वन, सो एलसीएम विल बी द 4। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 में, तो भागफल कितना हुआ 2। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस, नाउ 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 इज द भागफल मल्टीप्लाई बाई 3, so that is coming 2 plus 3 by 4, it means 5 by 4। आप यहां देखो, अगर ये 1 by 2 है तो हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, और 3 by 4 है तो इट इज ऑलमोस्ट फुल। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ग्लास वाटर से ज्यादा हो जाएगा। आप देखो ये 3 by 4 मीन्स ओनली 1 पोर्शन इज रिमेनिंग। सो अगर 3 by 4 में हम 1 by 4 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 by 4 में हम हाफ ऐड कर रहे हैं। हाफ मीन्स 1 by 4 प्लस 1 by 4, तो 1 प्लस 1 by 4 दैट इज 5 by 4। I hope it is clear. Similarly, subtraction is also there. For example, let's talk about 5 by 4 divided by 1 by 2. Same questions. So what will happen here? LCM, we have to take the LCM. LCM is 4. Now we have to 4 to 4 भागफल 1 आएगा, फिर 1 पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो भागफल 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। Oh sorry, sign is -1. So it will become 3 by 4. Let's talk about the multiplication. So 5 by 4 multiply by 1 by 2. इस केस में क्या होता है, अगर हम ऊपर और नीचे कट करते हैं अगर कुछ कॉमन है तो, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो लेट्स मेक इट सम अनदर एग्जांपल। So for example, I will take an example here. (10 by 15). तो ये क्या हो गया, 5 by 4 मल्टीप्लाई बाई 10 by 15। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो आउटपुट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 and 3 multiplied by 2 is 6. So this is the answer. Now let's talk about the division. Division कैसे करते हैं? अगर same division, let's do that one. 5 by 4 multiply by, sorry, divide by 6 by 5 by 4 divide by 5 by 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 by 4 हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बना देंगे और इसको हम अपोजिट कर देंगे, तो 5 by 2 बिकम 2 by 5। इसे ये कट गया,
2 से ये कट गया, तो दैट विल बिकम 1/2. सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आप इसको प्रैक्टिस करो, अगर आपको आप कंफर्टेबल हो तो इट्स वेरी गुड, इफ यू आर नॉट देन डू सम प्रैक्टिस फ्रॉम सम बुक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस दिखे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. ये नंबर ऑफ टर्म्स जब भी 4 या 5 से ज्यादा हो तो बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ पर कुछ ना कोई ट्रिक होगा जिससे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड लेंथी कैलकुलेशंस तो देगा नहीं, तो कहीं ना कुछ ऐसा ट्रिक होगा जिससे नंबर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनली रिजल्ट विल बी वेरी सिंपल. अभी हमें देख के क्या कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ है? नहीं. तो हम क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है. तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन? 2 plus 1 3/2 multiply by 3 and 1 4/2 4/3. इसको हम कुछ अगर सब सम करेंगे तो दैट विल बिकम 5/4. आप यहाँ देखो, अब तो कुछ दिख रहा है कि हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे कट कर सकते हैं. तो अगर ऐसा ही करते रहे तो ये हो गया 121/120. तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, इट्स हिडन. तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा. नेक्स्ट टर्म में अगला टर्म जो यहाँ पर होगा उससे ये कट जाएगा. तो क्या बच जाएगा? एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा. तो यहाँ आंसर हो जाएगा 121/2, दैट इज 60.5. यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दो चीज इंटरेस्टिंग है जो हमको याद रखने की जरूरत है. पहला तो ये प्लस का साइन, दूसरा आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंसेस जो है 2 3 4 एक एक का डिफरेंसेस है. व्हाट विल हैपन इफ डिफरेंसेस इज मोर? व्हाट विल हैपन, दिस साइन विल बी प्लस, इट विल नॉट द प्लस साइन, इट विल द माइनस साइन. हम दोनों ही केस डिस्कस करेंगे. आई होप इट इज क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस वन. तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है जिस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ लास्ट वाला टर्म का ऊपर बचेगा और फर्स्ट टर्म का नीचे वाला बचेगा, दैट इज 60.5. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए. ए विल बी द राइट आंसर, 60.5. I hope it is clear. Now let's talk about the another questions. Questions will be, let's change the sign. 1/1/2 multiply by 1 minus 1/3 multiply by 1 minus 1/4, like that 1 minus 1/120. So here we change the sign of the sign from plus to minus. So what will become here? 2 minus 1, so 1/2 multiply by 3 minus 1, 2/3, 4 minus 1, so 3/4, like that, and 120 minus 1, so that will be the 119/120. अब यहाँ देखेंगे नीचे से इसको कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कटेगा, 119 से 119 कटेगा. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1/120. तो ये नीचे वाला बच जाएगा और यहाँ पे ऊपर वाला बच जाएगा. तो ये हो जाएगा 100 1/120. तो यहाँ इंटरेस्टिंग है, अगर प्लस साइन होता है तो हमारा जो बचता है वो कौन सा बचता है? ऊपर में बचता है लास्ट टर्म, सो दैट इज 121, और नीचे में बचता है फर्स्ट टर्म, दैट इज द 2. लेकिन जब ये साइन प्लस से माइनस हो जाता है, जब ये साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस साइन होता है मिडिल इस बीच में, तो क्या होता है? ऊपर में बचता है फर्स्ट टर्म एंड नीचे में बचता है लास्ट टर्म, दैट इज 120. So this is, you can say, as a trick, but don't go to the trick. I already told that इस एग्जाम में हमारे पास इनफ टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
तो better to go with the right approach step by step, so there will be less chances that mistake will happen. Okay, now let me talk about the another questions जहां पर ये जो differences है 2 3 4 like that, it will be not the same, it will be the different. So next questions will be 2 minus 1 by 3 multiply by 2 minus 3 by 5 multiply by 2 minus 5 by 7, like that 2 multiply by 2 minus 997 divided by 999. Okay, now let's talk about these questions. हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो differences है 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो differences is not 1. In the previous questions we can see always 1 by 2, now it become 3, now it become 4, like that it is there. So it is easy. Now as you can see here the differences is not same. So in this case, but as per the first rule, it is going to from 1 to 999. So definitely there will be some logic and the cancellation will be happen in the middle terms. So let's find out. पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप को. So what will happen? 3 multiplied by 2 6 minus 1, that is the 5 by 3. Now 5 multiplied by 2 10 minus 3, that is 7 by 5. Next 7 multiplied by 2 14 minus 5, that is the 11 by 7. Similarly if I will go, it will become 1998. 9 दूनी 18 के 1 हासिल 1, 9 दूना 19, सॉरी 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 के 19, 9 दूनी 18 के 19. या सो 1998 minus 997 divided by 999. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला नीचे वाले से, सेकेंड टर्म का नीचे वाले से कैंसिल हो जा रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का जो टॉप वाला एलिमेंट होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या रिजल्ट बच जाएगा? ऊपर में बच जाएगा लास्ट टर्म, सो दैट इज 1 0 0 1 डिवाइडेड बाय 3. सो दैट विल बी द आंसर. तो आपने देखा यहाँ पर कि जब डिफरेंसेस 3 से 5 5 से 7 है, तो यहाँ पर भी नंबर 2 है, 1 नहीं है. तो जब हमारा डिफरेंसेस नीचे में 2 होगा तो यहाँ पर -2 होगा, अगर नीचे में डिफरेंसेस 3 होगा तो यहाँ पर 3 माइनस होगा. तो दैट इज द इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ये कैंसिलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा. अब सेकेंड टाइप की मैं डिस्कस करता हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइप, टाइप 2. हम फर्स्ट वाले को ये एक टाइप में क्यों रखे हैं? क्योंकि दिस इज द टाइप 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है. हम ईच फ्रैक्शंस इज मल्टीप्लाइंग, हैविंग मल्टीप्लिकेशन इन मिडिल. हम सारे फ्रैक्शंस को गुना कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको टाइप 1 किए. हम दूसरा टाइप उसको बताएंगे जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, समेशन होगा या माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. So this is all about the type 1. Type 1 I will discuss in the next session. तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि टाइप 1 के जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आप उसको नोट डाउन करें पेपर पर, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. मैंने बेसिक्स इसलिए डिस्कस किया है कि कुछ दोस्त होंगे जो किसी और बैकग्राउंड से होंगे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो वो भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. Thank you everyone. If you think that is adding some value to your knowledge, so please subscribe and share with your friends. Thank you.